Hello guys, myself Dr. Abdul Ahad Ismail, and finally a medical student. After a couple of months, I'm ready to start my internship. So from in this video, I would like to tell you that I'm going to start my own biochemistry lectures, and I hope you guys will like it. Um, Before starting the videos, I would like to tell you that I'm from Pakistan, so my lectures will be in English and in Urdu. And if you want me to ask about my teachers, so who helped me a lot, so that I can start my own lectures. The first teacher is Dr. Najib, and the second is his brother, Dr. Mubir, and the third is my teacher from India. His name is Dr. Manas. So I would like to say thank you to all of my teachers who helped me a lot to build my concepts, and now I'm ready to start my own lectures. Okay, so the book which I'm going to consult for biochemistry lectures is Kaplan, but don't worry, the book is short, but my video lectures will not be short anymore. Okay, so I will try to explain each and everything. Okay, I will try to explain each and every single word. Okay, मैं ट्राई करूँगा अपनी तरफ से कि मैं आपको तमाम जितनी भी बातें इसमें शॉर्ट करके लिखी गई हैं उनको एक्सप्लेन करके समझा सकूँ। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ। उसमें ये है कि ये जो बुक है टेप्लान की, ये दो पार्ट्स के ऊपर डिवाइडेड है, मोलिकुलर बियोलॉजी एंड द सेकंड इज जेनेटिक्स। ओके, जेनेटिक्स एक सेपरेट डिस्कशन, एक सेपरेट टॉपिक है। सो इन दिस लेक्चर सीरीज जेनेटिक्स नहीं इन्वॉल्व होगी, जस्ट मोलिकुलर बियोलॉजी इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। ओके, जेनेटिक्स नहीं होगी बिकॉज उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर सीरीज आई विल ट्राई टू मेक, बट नाउ ऑन मोलिकुलर बियोलॉजी के ऊपर सारे लेक्चर्स होंगे। ओके, सो I will start from the chapter from the basics. Chapter first, okay, nucleic acid structure and organization. Nucleic acid structure and organization. Okay, so now we will start from the first basics, from the chapter 1. Okay, so in our chapter 1 there are 3 to 4 topics which I would like to write it here. The first topic which I would like to discuss today in this video is central dogma, and the second is the second topic is about the nucleotides and the nucleosides, and the third topic is about the nucleic acid structure. Nucleic acid जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर 3 टॉपिक्स हैं बेसिकली। आपके सेंट्रल डोग्मा है, आपका न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स हैं, एंड देन आपका न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर है। ओके, सो आज की जो वीडियो होगी उसके अंदर आई विल जस्ट डिस्कस अबाउट द सेंट्रल डोग्मा, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर जो है हम इन दोनों को कंबाइन करके एक्सप्लेन करेंगे और इसके ऊपर एक second video आएगी, but today's video is just about the central dogma. Okay, so let's begin our discussion with this topic, central dogma. Okay, before I would like to start my lecture, ऐसा है कि देखें, हम एक ऑर्गेनिज्म है, और एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है।
और देन उस इंफॉर्मेशन को आगे अपनी जनरेशन्स में फॉरवर्ड कर देता है, पास आउट कर देता है, ठीक है। सो जो आज का टॉपिक है उसकी जो मेन डिस्कशन है वो यही है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे उस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करता है एंड देन कैसे उस इंफॉर्मेशन को अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स के अंदर फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। सो सेंट्रल डोगमा ऑफ molecular biology, okay। अगर कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाए सो जस्ट प्लीज इग्नोर देम बिकॉज आई एम वेरी वीक इन माय स्पेलिंग्स, ओके। स्पेलिंग्स की मिस्टेक होगी, सो इसीलिए पहले कह रहा हूँ, सो प्लीज काइंडली इग्नोर देम, ओके। सेंट्रल डोगमा, सो टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, अगर आपको इसको समझना है कि सेंट्रल डोगमा है क्या of the molecular biology, as I told you before that कि genetics and molecular biology दो different topics हैं, उनकी दो different discussions होंगी। So अभी हम जो इस पूरी कैप्लान की बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है वो सिर्फ molecular biology का है, not about the genetics, okay, at all, no genetics at all, okay, especially in my video lectures too। सो इन टू अंडरस्टैंड द सेंट्रल डोगमा, अगर आपको सेंट्रल डोगमा को समझना है सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको सोचना होगा कि वी आर द ऑर्गेनिजम्स, ओके। एक इंफॉर्मेशन जो है जो अभी मेरे अंदर है, मेरी बॉडी जो है उसको कैसे स्टोर कर रही है, कैसे उसको प्रिजर्व कर रही है, और देन कैसे मेरी बॉडी इसी इंफॉर्मेशन को आगे नेक्स्ट जनरेशन जो होगी, आई मीन माई नेक्स्ट जनरेशन, उसके अंदर कैसे आगे फॉरवर्ड कर देगी, ठीक है। तो उसको समझने के लिए फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम, ओके। आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर। सो टू अंडरस्टैंड द सेंट्रल डोगमा हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बेसिक्स, ओके। डीएनए से हम स्टार्ट करेंगे बिकॉज डीएनए से हम ऑनवर्ड जाएंगे, डीएनए से ऑनवर्ड जो है हम समझेंगे, बिकॉज जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो कि एक ऑर्गेनिज्म स्टोर करता है वो डीएनए के अंदर होती है आपके, ठीक है। सो डीएनए, आरएनए एंड देन प्रोटीन, मैसेंजर आरएनए, ओके। सो लेट मी डू सम लिटिल ड्राइंग। ओके, सो जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था कि अगर आपको सेंट्रल डोगमा को समझना है, सो सेंट्रल डोगमा को समझने के लिए आपको इस डायग्राम को समझना होगा, आपको डीएनए से जो है स्टार्ट करना होगा, आपको समझना होगा कि डीएनए से ऑनवर्ड जो है क्या प्रोसेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो है हमारे सेल्स के अंदर हो रहा होता है, कैसे इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, कैसे उसको आगे पास आउट किया जाता है। सो ओके, इस डायग्राम को देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आई विल ट्राई टू मेक इट इजी फॉर यू, ओके। सो व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स फ्रॉम द डीएनए, एज यू नो कि हमारे डीएनए जो है हमारा सपोज
this is if suppose this is the DNA, suppose this is the DNA, so DNA के अंदर क्या होता है कि जीन्स होते हैं, सपोज के ये आपका एक जीन्स का एक पार्ट है, ठीक है, तो ये एक पार्ट है, I mean in humans there are 26,000 genes, okay, there are 26,000 base pairs होते हैं, and क्या है कि DNA के ऊपर आपके जीन्स होते हैं, ठीक है, so when we look at the DNA, अगर हम DNA को देखें, so अगर DNA अपने आप को रेप्लिकेट करता है, so जब DNA अपने आप को डबल कर लेता है इन साइज एंड होल DNA जो है, लाइक सपोज देखें, अगर ये DNA है, दिस इज द एक्चुअल DNA स्ट्रैंड, ओके, एंड अब हम चाहते हैं कि ये डबल हो, तो ये अपने आप को इस तरह का एक और जब इस तरह का बना दे, ये लुक एट देम, ये वाला जो है द फर्स्ट वन, ये तो ये वाला स्ट्रैंड हो गया, ठीक है, ये वाला, एंड ये वाला जो है न्यू, ये न्यू स्ट्रैंड है, तो क्या है कि डीएनए ने बिल्कुल अपने ही जैसा एक ए टू जेड एक ही जैसा जो है इसके अंदर क्या है कि अपने जैसा एक और डीएनए मॉलिक्यूल बनाया है। सो इस जो प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन, जिसमें रेप्लिकेशन में क्या है कि डुप्लीकेशन हो जाना, कि डीएनए अपने आप को बिल्कुल साइज में और शेप में, और जितनी डीएनए के अंदर जीन्स हैं, जितनी बेस पेयर्स हैं, वो सारी की सारी आगे जो है एग्जैक्ट उसकी ये कॉपी जो है, न्यू कॉपी वो बन जाती है। सो उसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन, ओके। अगर हम डीएनए से ऑनवर्ड चलें, सो इफ वी गेट मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए, अगर हम मैसेंजर आरएनए हमें मिलता है फ्रॉम डीएनए से, अगर डीएनए से हमें मैसेंजर आरएनए मिलते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एंड अगर मैसेंजर आरएनए से हमें प्रोटीन्स मिलती हैं आगे, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन, ओके, ट्रांसलेशन। और अगर हम इसी प्रोसेस को रिवर्स कर दें, जैसे कि अभी डीएनए से आरएनए बना, तो आरएनए से अगर डीएनए बन जाए तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, लाइक दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन, सो लाइक द ऑपोजिट, सो इट्स द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ओके। I will try to make it simple for you, and I will write it here. 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 रेप्लिकेशन में क्या होता है कि आपको डीएनए से डीएनए ही मिलेगा, ओके। एंड ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि आपको डीएनए से आपको मैसेंजर आरएनए मिलेगा। एंड ट्रांसलेशन में क्या होगा कि मैसेंजर आरएनए से आपको प्रोटीन्स मिलेंगी। एंड द लास्ट वन इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा कि मैसेंजर आरएनए से आपको डीएनए दोबारा एक्चुअल फॉर्म में मिल जाएगा। ओके, हियर वी गो। देखें, रेप्लिकेशन के अंदर क्या था कि आपको डीएनए ही मिलेगा। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा कि आपको डीएनए से मैसेंजर आरएनए मिलेगा। ट्रांसलेशन में क्या होगा कि मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स मिलेंगी आपको। एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा कि आपको मैसेंजर आरएनए से दोबारा डीएनए मिलेगा, ओके। इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, सिंपल है। आप इसको देखने के बाद आप जब बुक में रीड आउट करेंगे, सो आई होप कि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ओके।
So now ओके, अभी ऐसा है कि एक डीएनए मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर बहुत सारी बेस पेयर्स होती हैं, ठीक है, एंड देन देयर आर जीन्स होते हैं. सपोज सपोज लेट मी एक्सप्लेन यू कि ये एक जीन है, ये एक जीन है. ये जो जीन है ये किसके ऊपर है? डीएनए के ऊपर है. ये डीएनए है, ठीक है. ये डीएनए किसके हैं? ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं हमारे, क्रोमोसोम्स. ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम कि ये हमारे जीन्स हैं, ये हमारा डीएनए है, और ये हमारे जो हैं क्रोमोसोम्स हो गए. ओके, सो दिस वन इज आवर जीन्स with our DNA and here our chromosomes. Okay, so you can look at this कि हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है कि हमारे डीएनए के अंदर स्टोर होती है, ठीक है. और डीएनए क्या है कि वो क्रोमोसोम्स के अंदर होता है इन अ डबल हेलिक्स फॉर्म. सो क्रोमोसोम्स जो हैं, आपको पता है कि देयर आर अबाउट 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं इसके क्रोमोसोम्स के. इन 23 देयर आर 22 ऑटोसोम्स होते हैं, 22 ऑटोसोम्स, एंड वन पेयर जो है वो आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है, आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है. ओके, so that's not difficult at all. Okay, so अब मैं आपके साथ जो चीज़ आगे नेक्स्ट डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि अभी आपने देखा कि कैसे डीएनए से जो है आपको मिला मैसेंजर आरएनए, एंड कैसे ऑनवर्ड आपको प्रोटीन तक का. तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया दो चीज़ें, एक रेप्लिकेशन एंड सेकंड थिंग जो है, जो अभी मैं आपके साथ कंपेयर, जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो रेप्लिकेशन के साथ कंपेयर करूँगा वो है जीन एक्सप्रेशन. ओके, जीन एक्सप्रेशन. रेप्लिकेशन, अभी मैं आप लोगों को बता चुका कि रेप्लिकेशन में क्या होता है कि एग्जैक्ट आपको डीएनए से दोबारा डीएनए का मिलना is replication. And here we go with our discussion with gene expression. देखें, जीन एक्सप्रेशन में क्या होता है कि एक डीएनए का स्ट्रैंड है और उसके ऊपर क्या है कि जीन्स होते हैं, ठीक है. अब क्या है कि 26,000 जीन्स जो हैं हमारे, 26,000 जीन्स हमारी बॉडी के अंदर एक डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर है. वही डीएनए के स्ट्रैंड्स, वही जीन्स जो कि मेरे न्यूरॉन्स के हैं, जो मेरे स्केलेटल मसल्स के हैं, जो कि जीन्स ऐसे हैं जो कि मेरी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करते हैं, ऑल आर सेम. 26,000 जो जीन्स हैं वो सेम ही होते हैं. लेट मी एक्सप्लेन यू कैसे. देखें, हियर वी गो. This is our DNA molecule. Okay, this is our one DNA strand. Okay, right. Let me write it here, DNA strand. ठीक है, DNA strand. So हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, जीन एक्सप्रेशन को. So suppose कि ये जो एक पार्ट है, ये होल डीएनए मॉलिक्यूल जो है, होल डीएनए स्ट्रैंड, उसका जस्ट एक छोटा सा ये जो पार्ट है, यहाँ के जीन्स अभी एक्टिव हैं. अगर यहाँ के जीन्स जो हैं वो जब एक्टिव हुए तो क्या होगा कि वो हमें क्या जीन्स आगे हमें क्या देंगे, हमें मिलेगा मैसेंजर आरएनए मिलेगा.
एंड देन क्या होगा कि हमें प्रोटीन्स मिलेंगी इन टर्न, हमें प्रोटीन्स मिलेंगी। सो जीन एक्सप्रेशन में क्या है कि सिर्फ अ स्मॉल पार्ट ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड इज एक्टिव एंड द रिमेनिंग वन जो है ये वाला ये सारा ये सारा क्या होगा, इनएक्टिव होगा, ये सारा इनएक्टिव होगा। जस्ट ये जो छोटा सा एक पार्ट आप देख रहे हैं, सपोज इट्स जस्ट एन एग्जांपल, ओके। सो जस्ट एक छोटा सा पार्ट जो है, जो कि ग्रुप ऑफ जीन्स है वहाँ पे, सिर्फ वही एक्टिव होंगे और आपको जो है वो अपना प्रोडक्ट देंगे। एग्जांपल के तौर पे लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। सपोज मेरे जो न्यूरॉन्स हैं, मेरे जो ब्रेन के जो हमारे नर्व सेल्स हैं, वहाँ के जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं वो सेम है, उन डीएनए स्ट्रैंड्स पे जो जीन्स हैं वो भी सेम है। आप ले लें मेरे स्केलेटल मसल्स को, तो जो मेरे स्केलेटल मसल्स हैं उनकी जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं वो भी सेम है, उनके ऊपर जो जीन्स हैं वो भी सब सारे के सारे सेम है। तो यहाँ पे जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो ये है कि जो स्केलेटल मसल के डीएनए स्ट्रैंड्स के अंदर जो स्पेशल सिर्फ इसके जीन्स होंगे, सिर्फ वही एक्सप्रेस होंगे, ठीक है। अब ये तो नहीं है कि मेरे स्केलेटल मसल्स के अंदर जो है मेरे न्यूरॉन्स की जीन्स एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, एक्सप्रेस करेंगे, ऐसा नहीं है। इसी तरह मेरे जो नर्व सेल्स हैं, जो मेरे न्यूरॉन्स हैं, तो वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है कि जो मेरे न्यूरॉन्स हैं, जो मेरे नर्व सेल्स हैं, सिर्फ वहाँ की जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, रिमेनिंग जो मेरी बॉडी के हैं वो एक्सप्रेस नहीं होंगे। एक और एग्जांपल मैं आपके लिए कोट करूँ कि जैसे मेरे न्यूरॉन्स के भी मैंने एग्जांपल दी कि सिर्फ न्यूरॉन्स के लिए वही जीन्स एक्टिव होंगे जिनकी ज़रूरत है। सपोज कुछ जीन्स ऐसे हैं जो कि मेरी जीआईटी के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो सेक्रेट करेंगे, वो बनाएंगे। तो अब यहाँ पे न्यूरॉन्स का तो कोई काम है नहीं, तो यहाँ पे वो जीन्स का एक्टिव होना बनता नहीं है, तो इसीलिए वो जो हैं वो सारे इनएक्टिव रहेंगे और जिसकी ज़रूरत है यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाने के लिए सिर्फ वही एक्टिव होंगे। सो सेम एज यहाँ पे अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स की तो ज़रूरत है नहीं आपके ब्रेन के अंदर, यहाँ पे ज़रूरत है न्यूरॉन्स की। तो सिर्फ न्यूरॉन्स जो हैं उसके लिए जो जीन्स हैं, जो स्पेसिफाइड हैं, जो स्पेसिफिक हैं, सिर्फ वही एक्टिव होंगे, रिमेनिंग जो है आपके वो सारे के सारे पूरी बॉडी के इनएक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। सो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखें कि जिसमें अ ग्रुप ऑफ जस्ट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ जीन्स जो है वो एक्टिव हो रहे हैं एंड रिमेनिंग वन जो है वो इनएक्टिव हो रहे हैं। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आगे आपके लिए इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कैंसर, इन टर्म्स ऑफ कैंसर, ओके। कैंसर क्या है? कैंसर इज बेसिकली अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। कैंसर क्या है कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। कैसे? दिस ऑल concept is basically important in terms of cancer. How? Let me explain it for you, okay? देखें, हमारी बॉडी के अंदर कुछ जीन्स होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी थी। तो स्पेशल हमारी बॉडी के अंदर कुछ जीन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोटो ऑन्को जीन्स। प्रोटो ऑन्को जीन्स क्या है? प्रोटो इज बेसिकली यू कैन से प्रिमिटिव और बिफोर इन। अगर आप इसकी बेसिक जो इसके मीनिंग्स हैं प्रोटो के, अगर आप वो देखें, सो प्रोटो मीन्स बिफोर और प्रिमिटिव। एंड ऑन्को जीन्स क्या होते हैं? कैंसर काजिंग जीन्स होते हैं, ठीक है। ऑन्को इज रिलेटेड टू ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी मीन्स कैंसर रिलेटेड, ओके। सो जीन्स, बेसिकली जीन्स जो कि आगे जाके एक्सप्रेस होंगे। एंड ऑन्को इज रिलेटेड टू द कैंसर एंड प्रोटो इज मीन्स बिफोर एंड प्रिमिटिव, ओके। सो नाउ इसका जो बेसिक मीनिंग है कि वो जीन्स हमारी बॉडी के अंदर जो आगे जाके कैंसर काज कर सकते हैं, बट अभी के लिए वो नॉर्मल है, अभी के लिए वो नॉर्मल, इसीलिए प्रोटो, प्रोटो मीन्स बिफोर। सो क्या है कि ऑलवेज ये ऑफ रहते हैं,
these genes always remain off, okay, बट जब हमें ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, तो तब क्या है कि ये ऑन हो जाते हैं, ये ऑन हो जाएंगे, ऑफ पोजीशन से ऑन पोजीशन में आ जाएंगे। और जब हमारे प्रोटोऑन्कोजीन्स जो हैं, अभी नॉर्मल देखें, और मेरी बॉडी है, यहाँ पे मुझे कोई कट नहीं लगा है, सो मुझे यहाँ पे किसी किस्म की रिजनरेशन की, मेरी स्किन को यहाँ पे किसी किस्म के रिपेयर की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे इन जीन्स को ऑन रखने की क्या ज़रूरत, सो ये ऑलवेज ऑफ रहेंगे। अगर सपोज मुझे यहाँ पे कट लग जाता है, मेरी स्किन यहाँ पे डैमेज हो जाती है, तो मुझे यहाँ पे रिजनरेशन की ज़रूरत है, मुझे यहाँ पे रिपेयर की ज़रूरत है, मुझे यहाँ पे बहुत सारी मैकेनिज्म्स की ज़रूरत है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे ऐसे जीन्स चाहिए जो यहाँ पे आके एक्सप्रेस हों, जो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें और इस जगह को हील आउट करें। तो फिर क्या है कि अब स्पेशल सिचुएशन मैंने दे दी अपनी बॉडी को, तो ये ऑफ से ऑन पोजीशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो वही बात है कि ये जीन्स जो हैं, वही बात कि मैसेंजर आरएनए एंड देन आपको मिलेगा प्रोटीन प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोटीन जो है आपकी आइदर यू कैन गेट कुछ एंजाइम्स हो सकते हैं, एंजाइम्स भी हमारे प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। हमारे प्रोटीन कहाँ से आती है, हमारे फर्स्ट अमाइनो एसिड्स बनते हैं, अमाइनो एसिड्स किससे जो है फिर आगे जाके प्रोटीन बनती है। बट इन द नेक्स्ट चैप्टर्स आई विल आल्सो एक्सप्लेन यू कि ये जो प्रोसेस है कि हमें डीएनए से मैसेंजर आरएनए कैसे मिलता है, इसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा। एंड देन मैसेंजर आरएनए से ऑनवर्ड प्रोटीन कैसे बनती है, तो इन द नेक्स्ट वीडियोस यू विल सी कि प्रोटीन फॉर्मेशन जो है वो भी डिस्कस की जाएगी, ओके। So here we go with proto-oncogenes. Proto means before and onco is related to the cancer, and genes are the genes which are present on the DNA strands, okay. Proto-oncogenes always in off position. जब हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती इनकी, सो ये ऑफ रहते हैं, लेकिन जब हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है तो तब ये ऑन हो जाते हैं और जो है अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। देखें यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल दी कि मुझे यहाँ पे कट लगा है, यहाँ पे जब मुझे कट लगा तो सिर्फ जो यहाँ पे जीन्स हैं सिर्फ वही एक्सप्रेस होंगे, रिमेनिंग मेरी बॉडी के सारे जो हैं वो इनएक्टिव हैं, बिकॉज उनको ज़रूरत नहीं है। सेम जैसे मैंने पहले आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स की एग्जांपल दी, न्यूरो की दी, मैंने आपको स्केलेटल मसल्स की दी, तो सेम एज हियर। सो दिस इज प्रोटो-ऑन्कोजीन्स। अब क्या है कि ओके, लेट मी राइट वन मोर थिंग। ये जो है ये आपके नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल ग्रोथ के लिए, नॉर्मल सेल ग्रोथ। Okay, this is our first discussion is about proto-oncogenes, and the second discussion is about our oncogenes. Oncogenes means कि पहले हमारी बॉडी में नॉर्मल सेल ग्रोथ हो रही थी, जब ये नॉर्मली ऑफ थे, हमारी बॉडी को ज़रूरत हुई तो ये ऑन हो गए, ठीक है। और जब वो फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा तो ये अगेन ऑफ हो जाएंगे। अब क्या है कि आपकी जो हमारी बॉडी के अंदर अब क्या है कि सेल्स के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर क्या है कि उस डीएनए के अंदर अब म्यूटेशन हो गई है, ठीक है। अब अगर म्यूटेशन हो गई है, किसी किस्म की प्रॉब्लम आ गई है, सो प्रोटो-ऑन्कोजीन्स आर नॉट नॉर्मल एट ऑल। प्रोटो-ऑन्कोजीन्स अब प्रोटो-ऑन्कोजीन्स नहीं रहे, प्रोटो-ऑन्कोजीन्स अब ऑन्कोजीन्स बन गए। ऑन्को मीन्स कैंसर causing genes, कैंसर causing genes। अब क्योंकि म्यूटेशन हो गई है, सो प्रोटो-ऑन्कोजीन्स अब प्रोटो-ऑन्कोजीन्स नहीं है, नाउ दे आर ऑन्कोजीन्स। मीन्स यही हमारे जीन्स जो पहले हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल सेल ग्रोथ का बाइस बन रहे थे, अब वो कैंसर का बाइस बनेंगे। कैसे, देखें, प्रोटो-ऑन्कोजीन्स पहले ऑफ पोजीशन में थे, ठीक है, तो ऑन्कोजीन्स जो हैं अब वो म्यूटेशन होने के बाद दे रिमेन ऑलवेज इन ऑन पोजीशन, ये हमेशा के लिए क्या है कि ऑन रहेंगे। यहाँ पे तो ऑन एंड ऑफ का कॉन्सेप्ट था कि जब आपको ज़रूरत नहीं थी तो ये प्रोटो-ऑन्कोजीन्स आपके ऑफ थे,
जब आपको ज़रूरत हुई तो वो ऑन हो गए, जब ज़रूरत ख़त्म हुई तो वो दोबारा से ऑफ हो गए। ये तो था प्रोटोऑन्कोजीन्स का। अब क्या है कि म्यूटेशन हो गई है, म्यूटेशन में हो गई है तो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके बॉडी के कंट्रोल के अंदर अब ये चीज़ नहीं है कि जो यहाँ पे ऑन एंड ऑफ का चेक एंड बैलेंस था वो अब ख़त्म हो गया है। तो अब ऑन्कोजीन्स जो है वो ऑलवेज ऑन रहेंगे, और जब वो ऑन रहेंगे तो उससे क्या होगा कि आप क्या काज कर रहे हैं, आप कैंसर काज कर रहे हैं। एंड व्हाट इज कैंसर? एज आई टोल्ड यू बिफोर, कैंसर इज नथिंग, कैंसर इज जस्ट uncontrolled cell division। कैंसर क्या है? कैंसर सिर्फ एक अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है। मींस पहले प्रोटोऑन्कोजीन्स के अंदर कंट्रोल डिवीजन हो रही थी कि आप कंट्रोल कर रहे थे ऑफ एंड ऑन पोजीशन के थ्रू, लेकिन अब ऑन्कोजीन्स में म्यूटेशन हुई है, सो नाउ दे आर अनकंट्रोल्ड। अब ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, प्रोटोऑन्कोजीन्स एंड ऑन्कोजीन्स का, ठीक है। सो देखें, हमारी बॉडी में नॉर्मली तो इसका चेक एंड बैलेंस है, इसीलिए अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो उसको अगर कैंसर नहीं है, सो इट्स मीन दिस प्रोसेस इज गोइंग वेरी वेल। बट इफ अ पेशेंट ही हैव्स अ कैंसर, सो इट्स मीन कि उसके अंदर अब म्यूटेशन हो गई है। किसी भी जगह कोई भी कैंसर है तो वहाँ पे म्यूटेशन है, तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो रही है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो है, कुदरत ने, हमारी बॉडी के अंदर नेचर ने क्या रखा हुआ है कि इस प्रोसेस को रोकने के लिए एक और जीन्स होते हैं, एक और किस्म के जीन्स होते हैं, वो रखे हुए हैं जो इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। और वो क्या हैं? ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। कैंसर को कंट्रोल करने के लिए, कैंसर के ऊपर जो है चेक एंड बैलेंस रखने के लिए हमारी बॉडी के अंदर नेचर ने क्या रखा हुआ है कि देयर आर ग्रुप ऑफ स्पेशल एंजाइम्स, जिनको हम कहते हैं क्या? ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ओके, देयर आर ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। हमारी बॉडी के अंदर नेचर ने ट्यूमर सप्रेसर जीन्स रखे हुए हैं। ट्यूमर आपको पता ही है क्या है कि जो कैंसर होता है, जो एक मैस होता है अनकंट्रोल सेल डिवीजन के नतीजे में बनता है, उसको आप ट्यूमर कहते हैं। सप्रेसर मीन जो उसको सप्रेस करता है, उसको दबाता है। एंड जीन्स, वो जीन्स जो कि ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उससे हम कहते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। तो हमारी बॉडी के अंदर वो रखे हैं जो कि इस कैंसर को, जो कि ऑन्कोलॉजी है, जो कि ऑन्कोजीन्स हैं, जो कि कैंसर काज करेंगे, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस के लिए हमारी नेचर ने हमारी बॉडी के अंदर रखे हुए हैं। अच्छा, अब ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो हैं उसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, सो देयर इज जस्ट वन एग्जांपल, वन एंड ओनली द फेमस वन, जो कि आपको किसी भी बुक के अंदर मिलेगी और आपने बहुत दफ़ा रीड आउट भी की होगी, इज P53। ये आपने सुना होगा P53 जीन्स का। सो P53 जीन्स क्या है? P53 जो है वो आपके ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं, जो कि आपकी बॉडी के अंदर ये जो कैंसर काजिंग जीन्स होते हैं उनको चेक एंड बैलेंस रखता है, उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। अभी के लिए आई थिंक दिस इज इनफ, बिकॉज in the next discussion I will tell you and I will explain it to you कि TP53 जो है कैसे, TP53 जो है कैसे कंट्रोल करता है सेल डिवीजन को। ओके, अनकंट्रोल सेल डिवीजन को कैसे कंट्रोल करता है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ये तो होगी एक एग्जांपल जो कि हमारी बॉडी में बहुत कॉमन है। सेकंड है, आपने कोलोन कैंसर का सुना होगा। कोलोन कैंसर जो है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके लिए जो हमारे पास ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं फॉर कोलोन कैंसर, लेट मी राइट इट हियर, फॉर कोलोन कैंसर हमारी बॉडी ने जो इसके लिए ट्यूमर सप्रेसर जीन रखा है वो कौन सा है? वो है APC जीन्स। ओके, APC जीन।
So before we go forward in the forward direction, जितना भी हमने अभी पढ़ा है मैं उसको आपके सामने समराइज करूँगा in just in a short form, okay? So that ताकि जितना आपने अभी पढ़ा है वो आपको सारा रिकॉल हो जाएगा. So मैं अभी आपके सामने जितना हमने अभी पढ़ा है उसको कंपेयर करते हैं, ओके? हमने डिस्कशन की बेसिकली जीन एक्सप्रेशन के बारे में हमने डिस्कशन की अभी, और हमने बात की डीएनए रेप्लिकेशन की बात की हमने, ओके? ओके, here we go, okay. ओके, जीन एक्सप्रेशन में क्या हमने डिस्कस किया कि अ स्मॉल ग्रुप ऑफ जीन्स एक्सप्रेस होंगे डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर, ठीक है? अ स्मॉल ग्रुप ऑफ जीन्स, स्मॉल ग्रुप ऑफ जीन्स एक्सप्रेस होंगे डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर, ठीक है? एंड डीएनए रेप्लिकेशन में क्या था कि होल डीएनए मॉलिक्यूल जो है, होल डीएनए स्ट्रैंड्स जो हैं वो एग्जैक्ट जो है डुप्लीकेट हो जाएंगी. पहले अगर एक था, सो नाउ दे आर टू, ओके? सो इसमें क्या है कि होल डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो डुप्लीकेट हो जाएगा. सेकेंड जो चीज़ है जो इसके अंदर वो ये है कि जीन एक्सप्रेशन जो है एंड डीएनए रेप्लिकेशन, ओके? I will before saying the second thing, first let me explain it to you a little thing जो मैं भूल गया था. Okay, quickly, okay? This is the DNA molecule. Here we go with messenger RNA. Here we go with proteins, okay? Okay, so हमने कहा कि DNA से अगर हमें DNA मिल जाए तो वो होगा रेप्लिकेशन. हमने कहा अगर हमें डीएनए से मैसेंजर आरएनए मिल जाए तो वो होगा ट्रांसक्रिप्शन, ओके? हमने कहा अगर हमें मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स हमें मिलेंगी तो ये होगा ट्रांसलेशन, ओके? एंड अगर हमें दोबारा यही मिल जाए इससे तो ये होगा क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ओके? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, ओके? सो when these two process जो हैं transcription and translation occur together, we call it gene expression. Okay, gene expression. इसमें क्या है कि ये जो प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन का ये जो प्रोसेस है सारा, ये आपका होगा कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर. ये होगा न्यूक्लियस के अंदर. एंड रिमेनिंग वन जो है यहाँ से ऑनवर्ड, ये जो मैंने अभी लाइन ड्रॉ की है इससे ऑनवर्ड जो है कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये स्टार्ट हुई है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन वो एग्जिट करेगी न्यूक्लियस को. एंड वो जो प्रोसेस है ऑनवर्ड का वो सारा कंप्लीट करेगी कहाँ पे? वो करेगी साइटोप्लाज्म के अंदर. जो है वो उसको कंप्लीट करेगी. एंड ये साइटोप्लाज्म में क्यों कंप्लीट कर रही है उसकी रीजन जो है मैं आपको अभी आगे देता हूँ. ओके, सो जीन एक्सप्रेशन, जैसे मैंने अभी बोला, जीन एक्सप्रेशन जो है ये कहाँ पे होगा? ये होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है? और डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये कहाँ हो रही है? आपकी न्यूक्लियस के अंदर. ये हो रही है डीएनए रेप्लिकेशन आपकी न्यूक्लियस के अंदर हो रही है. जीन एक्सप्रेशन में क्या होता है कि आपको पहले मैसेंजर आरएनए मिलता है, ठीक है? मैसेंजर आरएनए से ऑनवर्ड जो है आपको प्रोटीन मिलती है, और मैसेंजर आरएनए जो है ये आपको जिस प्रोसेस के थ्रू मिला उस प्रोसेस को आप कहते हैं क्या? ट्रांसक्रिप्शन. एंड प्रोटीन आपको जिस प्रोसेस के थ्रू मिले उस प्रोसेस को आप कहते हैं ट्रांसलेशन. ओके, इसमें क्या है कि
आपको डीएनए रेप्लिकेशन में क्या है कि आपको एक और डीएनए कॉपी मिल जाएगी. सो कॉपी ऑफ न्यू डीएनए, कॉपी ऑफ न्यू डीएनए आपको मिल जाएगी. ओके. सो जो उस टाइम मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको एक रीज़न दूंगा कि जो जीन एक्सप्रेशन है, जो आपकी जीन एक्सप्रेशन है, वो सारा प्रोसेस जो है वो आपका हो रहा है. जो आपकी ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन है ये आपकी हो रही है साइटोप्लाज्म के अंदर, एंड ये आपकी हो रही है न्यूक्लियस के अंदर. ठीक है, ये तो हो गया डीएनए की रेप्लिकेशन होगी न्यूक्लियस के अंदर. एंड जो आपकी ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन है ये आपकी हो रही है क्या, साइटोप्लाज्म के अंदर. एग्जैक्टली क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन वो एग्जिट करेगी न्यूक्लियस को. एंड जो रिमेनिंग जो प्रोसेस है, द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन इज हैपनिंग इन साइटोप्लाज्म. क्यों? बिकॉज हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर जो है क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं. सो इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन्स, आपको प्रोटीन्स बनाने के लिए हमें राइबोसोम्स की ज़रूरत होती है. और राइबोसोम्स कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं. सो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस होगा हमारा कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर. ओके, आई होप यू विल गेट इट. अभी हमने जीन एक्सप्रेशन की बात की, हमने डीएनए रेप्लिकेशन की बात की, हमने उनका कंपैरिजन भी किया. तो यहाँ पे हमने जो है सेल डिवीजन का एक वर्ड यूज़ किया कि सेल डिवाइड कैसे हो रहा होता है. ठीक है, सेल डिवीजन एंड सेल डिवीजन. सो यहाँ पे मैं आपको जस्ट अ माइनर टच दूंगा सेल डिवीजन का, उस सारे प्रोसेस का जस्ट अ माइनर टच दूंगा. लेकिन उसके ऊपर जो है एक सेपरेट वीडियो जो है आई विल एक्सप्लेन इट कि सेल डिवीजन कैसी होती है. बट यहाँ पे because basic है, so in the first video I will not go so longer. so आपको जो है जस्ट ब्रीफ टच देना चाहूँगा यहाँ पे कि सेल डिवीजन जो है वो कैसी होती है. तो आपको पता होगा कि माइटोसिस जो है, माइटोसिस, एंड आपने सुना होगा देयर इज अनदर टर्म मियोसिस, मियोसिस. ओके, सो ये दो टर्म्स जो हैं ये आपने सुनी होंगी. माइटोसिस जो है ये हमारी होती है नॉर्मल बॉडी के सेल्स के अंदर. जो हमारी नॉर्मल बॉडी है उसके सेल्स के अंदर जो डिवीजन होती है, व्हाट काइंड ऑफ सेल डिवीजन, दैट इज माइटोसिस इन नॉर्मल नॉर्मल सेल्स. ओके, हमारे जो सेल्स हैं वो नॉर्मली डिवाइड करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. एंड जो हमारी गैमेट्स हैं, जो हमारे सेक्स गैमेट्स हैं, गैमेट्स प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, वो कैसे डिवाइड करेंगे, जो है वो डिवाइड करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. ओके, गैमेट्स प्रोड्यूसिंग सेल्स. सो गैमेट्स प्रोड्यूसिंग सेल्स जो हैं वो डिवाइड करेंगे मियोसिस के थ्रू. एंड जो हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं वो डिवाइड करेंगे माइटोसिस के थ्रू. सो यहाँ पे जो हम अभी जो सेल डिवीजन की बात कर रहे थे, सो वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द माइटोसिस. ओके, सो मैं माइटोसिस का आपको जो है जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो मैं आपको ये दे देता हूँ. यहाँ पे देखिए क्या होता है कि here we go with phase. Okay, and then now we go with G1 phase. Here we go with S phase. Here we go with G2 phase. And here we go with M phase.
आपने इसके बारे में सुना होगा। सो ये सेल साइकिल है बेसिकली। देयर इज एम फेज जो कि है माइटोसिस फेज, ठीक है। यहाँ पे माइटोसिस हो रही है इससे ऑनवर्ड, और यहाँ पे जो है यहाँ से एक कोई भी न्यू सेल जो है, न्यू सेल जब न्यू सेल रेडी होता है डिवीजन के लिए तो वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, ठीक है। वो इस फेस के अंदर आएगा, यहाँ पे आएगा, वो अपने आप को क्या करेगा, वो अपने आप को यहाँ पे आके रेडी करेगा। देखें सपोज अगर हमने एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है तो हम क्या करते हैं कि हम अपने आप को पहले रेडी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, एंड देन हम फाइनल इंटरव्यू के अंदर जाते हैं। सो ऐसे ही कोई भी सेल जिसने अपने आप को डिवाइड करना है वो पहले आएगा इस फेज के अंदर, जिसको हम कहते हैं G1 फेज जो है, जिसको आप ग्रोथ 1 फेज बोल लें या इसको जो है आप गैप 1 फेज बोलते हैं। तो वो पहले आएगा इस फेज के अंदर, यहाँ पे वो अपने आप को रेडी करेगा, प्रिपेयर करेगा इस फेज के अंदर जाने के लिए। अभी हम सपोज बात कर रहे थे डीएनए मॉलिक्यूल की। सो डीएनए मॉलिक्यूल बिफोर गोइंग इन द एस फेज, डीएनए मॉलिक्यूल अपने आप को प्रिपेयर करेगा, अपने अंदर जो है सारी चीज़ें देखेगा कि क्या मैं रेडी हूँ या नहीं हूँ, अपने आप को जो है यहाँ पे रेप्लिकेशन करने के लिए, अपने आप को यहाँ पे डबल करने के लिए। तो पहले वो अपने आप को यहाँ पे प्रिपेयर करता है। सो न्यू सेल आता है और वो यहाँ पे G1 फेज के अंदर रेडी होता है। अब क्या है कि न्यू सेल जो है वो रेडी हो गया, वो सारा कुछ यहाँ पे उसने अपने आप को देखा कि मेरे अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं कि मैं डिवाइड कर सकता हूँ। तो वो यहाँ पे एक हमारे कुदरत ने, नेचर ने एक यहाँ पे चेक पॉइंट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक चेक पॉइंट, एक चेक पॉइंट रखा हुआ है यहाँ पे। ऐसे सेल्स जो डिवीजन के लिए कैपेबल नहीं होते, जो वो इस चेक पॉइंट से क्रॉस ही नहीं होते। ये चेक पॉइंट जो है, जिसका नाम जो है चेक पॉइंट का, वो है G1 एस चेक पॉइंट। ओके, सो ये जो है G1 एस चेक पॉइंट जो है, जो इन दोनों के दरमियान में है, वो उन तमाम सेल्स को आगे डिवीजन की परमिशन नहीं देता जो कैपेबल नहीं होते। और जो कैपेबल होते हैं वो इसको क्रॉस करते हैं, यहाँ से वो इस तरह क्रॉस करते हैं और वो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे जो है अभी सपोज हम लोग डीएनए की बात कर रहे थे, तो डीएनए जो है यहाँ पे क्या होगा, डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, डीएनए की रेप्लिकेशन होगी। एस फेज, एस मींस सिंथेसिस, सिंथेसिस, ओके, मींस फॉर्मेशन फेज है। यहाँ पे क्या है कि अब वो बनेगा, यहाँ पे वो प्रिपेयर हो रहा था, यहाँ पे आके वो क्या, वो फॉर्मेशन हो रही है उसकी, बन रहा है वो। फिर ये G2 जो है, ये भी क्या है कि अब इसको ग्रोथ फेज बोल लें या गैप फेज 2 बोल लें। यहाँ पे क्या है कि वो चेक करेगा कि क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। जो अभी पहले एक डीएनए मॉलिक्यूल था, अब 2 डीएनए मॉलिक्यूल आ गए, ठीक है, यहाँ से गुजरने के बाद। तो अब इस फेज के अंदर क्या है कि वो चेक करेगा अपने आप को कि क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है। बिकॉज जो प्रॉपर जो हमारी सेल डिवीजन होगी ना, वो इससे ऑनवर्ड होगी, ठीक है, इससे ऑनवर्ड होगी। ये जो है एम फेज, ये है क्या, माइटोसिस फेज है। एम स्टैंड्स फॉर माइटोसिस। तो यहाँ से ऑनवर्ड माइटोसिस स्टार्ट होगी। और ये जो सारा था G1 से G2 तक का, ये सारा था इंटरफेज। क्या था? इंटरफेज। और यहाँ से ऑनवर्ड जो है आपका शुरू हो जाएगा, क्या शुरू हो जाएगा आपका, शुरू हो जाएगा एक मेटाफेज, मेटाफेज आपका शुरू होगा, एनाफेज आपका शुरू होगा, टीलोफेज, टीलोफेज। तो ये माइटोसिस अपनी कंप्लीट करेगा, ठीक है। और जो फिर न्यू सेल्स हैं वो अगेन इस प्रोसेस के थ्रू जो है यहाँ से होते हुए आएंगे। सो मैंने आपको सारा तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इसका मैंने आपको फंक्शन एक्सप्लेन नहीं किया G0 का। इसके लिए क्या है कि देखें, हमारी बॉडी के अंदर 3 तरह के सेल्स होते हैं। हमारी होल बॉडी के अंदर 3 तरह के सेल्स हैं। फर्स्ट वन जो है, जिनको हम बोलते हैं क्या, लेबाइल सेल्स। फर्स्ट है लेबाइल सेल्स, सेकंड है हमारे क्या, क्विसेंट सेल्स, क्विसेंट सेल्स,
एंड थर्ड जो है वो है परमानेंट सेल्स। परमानेंट सेल्स हमारी बॉडी के अंदर जो है वो 3 तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है। तो इसको आप अपने माइंड में रखिएगा और आई विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ दीज 3 टाइप्स ऑफ द सेल्स बाय यूजिंग दिस डायग्राम, ओके। फर्स्ट वन क्या थे हमारे पास, थे लेबाइल सेल्स। लेबाइल सेल्स। सेकंड क्या थे हमारे पास, कोइशेंट सेल्स। कोइशेंट सेल्स। एंड थर्ड हमारे पास थे परमानेंट सेल्स। परमानेंट सेल्स। सो लेबाइल सेल्स कौन से होते हैं? लेबाइल सेल्स जो हैं वो होते हैं जो हमारी बॉडी में कॉन्टिन्यूस डिवीजन करते हैं, जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। सो कॉन्टिन्यूसली जो डिवाइड करेंगे, कॉन्टिन्यूसली जो सेल्स डिवाइड करेंगे उनको हम बोलते हैं, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करेंगे उनको हम बोलते हैं लेबाइल सेल्स। और ऐसे सेल्स जो सिर्फ ज़रूरत पड़ने के ऊपर, सिर्फ जब कोई ज़रूरत पड़ेगी किसी ऑर्गन को, किसी सेल के ऊपर कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आएगी, तो जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ तभी डिवाइड करेंगे, वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड नहीं करेंगे। उनको हम बोलेंगे कोइशेंट सेल्स जो हैं ऑन स्ट्रेसफुल कंडीशंस, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में वो डिवाइड करेंगे, ठीक है। और थर्ड जो है वो ऐसे हैं जो एक दफ़ा जो नेचर ने हमें प्रोवाइड कर दिया, अगर वो डैमेज हो जाते हैं तो दोबारा वो सेल डिवीजन नहीं हो सकती। बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन द परमानेंट सेल्स। लेकिन अभी तक के लिए जो रिसर्चेज हैं उसके मुताबिक हमारी बॉडी के अंदर जो है सिर्फ 3 तरह की ही जो हैं इसकी एग्जांपल्स हैं, 3 तरह के सेल्स हैं जो एक दफ़ा डैमेज हो जाएं तो दोबारा जो है वो डिवाइड नहीं करते, ओके। परमानेंट सेल्स नेवर डिवाइड अगेन, नेवर डिवाइड, ओके। अब लेबाइल सेल्स की जो अगर हम एग्जांपल्स लें तो लेबाइल सेल्स की एग्जांपल्स जो हैं वो क्या हो सकती, सबसे पहले आपको पता है हमारी स्किन, कहीं भी कट लग जाता है तो कॉन्टिन्यूस डिवाइड करती है स्किन। फिर क्या है कि हमारी जो है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जो है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जो है हमारी वो लेबाइल सेल्स की मदद से करती है। फिर जो है हमारी जीआई ट्रैक्ट जो है वो हमारी इसी के थ्रू करती है, लेबाइल सेल्स की मदद से ही जो है हमें कॉन्टिन्यूस डिवीजन हो रही होती है। फिर हमारी जो है जेनिटल यूरिनरी जो ट्रैक्ट है वो हमारी इसी के थ्रू डिवीजन हो रही होती है। विद रिगार्ड ऑफ दिस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो है इनसे रिलेटेड कि हमारी जो स्टूल्स होते हैं, सो उसका जो मैस होता है, अगर 100% हमारे स्टूल्स का मैस है तो उसमें जो 50% है, 50% वो वेस्ट है, लेकिन जो 50% है वो हमारी ही जीआई ट्रैक्ट जो है उसके डेड सेल्स होते हैं। हमारी जीआई ट्रैक्ट जो है उसके डेड सेल्स जो हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टूल्स, तो वो स्टूल्स में वेस्ट की सूरत में निकाल दिए जाते हैं, ओके। तो ये हो गए लेबाइल सेल्स। कोइशेंट सेल्स क्या हैं कि उन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में, तो इसके लिए right now I will just quote for you 2 examples, okay. The first example is liver and the second is kidney। देखिए लिवर जो है, लिवर कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, आप अल्कोहल जो है अगर आप ड्रिंक करते हैं तो लिवर के ऊपर एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, तो उस सिचुएशन के अंदर लिवर जो है अपने आप को मैनेज करता है
तो तब जो है वो क्वेश्चन सेल्स होते हैं, सो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में लिवर अपने आप को डिवीजन में डाल देता है। नॉर्मली अगर आप जो है आपके लिवर में कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं है तो आपका लिवर डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है, बट अगर आप उसको कट भी करते हैं तो वो अगेन रीजनरेट भी कर जाता है। सेकंड जो एग्जांपल है वो आपकी किडनी है। परमानेंट सेल्स जो थर्ड टाइप है हमारे सेल टाइप्स की हमारी बॉडी के अंदर जो कि कभी डिवाइड नहीं करते, उनकी जो एग्जांपल्स हैं वो हैं, फर्स्ट आपके हैं हमारे न्यूरॉन्स, ठीक है। हमारे नर्व सेल्स जो हैं, हमारे नर्व सेल्स जो हैं हमारे ब्रेन के, अगर वो एक दफ़ा डैमेज हो जाएं तो वो दोबारा कभी रिजनरेट नहीं करते। सेकंड जो है हमारे हार्ट के कार्डिक सेल्स, ठीक है, कार्डिक मसल सेल्स। सो अगर हमारे हार्ट के मसल सेल्स जो हैं अगर वो डैमेज हो जाएं तो वो भी कभी दोबारा रिजनरेट नहीं होते। और उसके अलावा थर्ड जो है वो है स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स। तो जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं अगर वो भी डैमेज हो जाएं तो वो भी कभी दोबारा डिवाइड नहीं करते। सो ये तीन एग्जांपल्स जो हैं वो परमानेंट सेल्स की हैं। तो एज आई एक्सप्लेन यू जस्ट नाउ कि वो जो सेल साइकिल था माइटोसिस वाला, उसमें जी नॉट फेज का क्या रोल था। तो जी नॉट का जो है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो सेल्स हैं क्वेशेंट सेल्स जो ऑन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में अपने आप को डिवाइड करते हैं, तो इस तरह के जो सेल्स हैं वो अपने आप को जी नॉट फेज में रखते हैं। देखें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये अगर G1 फेज है और यहाँ से ऑनवर्ड आपका एस फेज स्टार्ट होगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि आपका एक जी नॉट फेज आता है। तो ये जो क्वेशेंट सेल्स हैं, क्वेशेंट सेल्स वो अपने आप को यहाँ पे क्या है कि वो यहाँ पे अपने आप को रोक के रखते हैं, ये क्वेशेंट सेल्स हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी तो तब ये दोबारा से साइकिल में इंटर हो जाएंगे। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी इन क्वेशेंट सेल्स पर, स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी, तो यही क्वेशेंट सेल्स जो हैं, यही जो हमारे क्वेशेंट सेल्स जो हैं वो दोबारा से सेल साइकिल के अंदर जो है इंटर हो जाएंगे, इंटर सेल साइकिल, दोबारा से सेल साइकिल के इंटर होंगे एंड सेल डिवीजन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। I hope that's not so difficult for you. The one and only the last thing of this today's topic is just about is going to end. So I will just explain it to you in a short while. कि मैंने जैसे आपको अभी बताया कि हमारी जो बॉडी है उसमें जब सेल डिवीजन हो रही होती है उस सेल साइकिल के थ्रू, तो क्या है कि सपोज देखें जैसा कि ये था G1 फेज था, G1 फेज था और ये था हमारा S फेज। अब क्या है कि नेचर ने हमारे अंदर यहाँ पे एक चेक पॉइंट रख दिया, एक यहाँ पे क्या है एक चेक पॉइंट रख दिया। उस चेक पॉइंट का नाम क्या है G1S चेक पॉइंट, चेक पॉइंट। तो ऐसे सेल्स जो कैपेबल नहीं होते सेल डिवीजन के लिए तो वो इस चेक पॉइंट को क्रॉस नहीं करते हैं, और जो सेल्स कैपेबल होते हैं वो इजीली इस चेक पॉइंट को क्रॉस करते हैं और वो अपनी सेल डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। देखें हमने जो अभी कैंसर की डिस्कशन की, तो कैंसर जो है ऐसे सेल्स जो कि कैंसर का बाइस बन सकते हैं, कैंसर का बाइस बन सकते हैं, वो क्या करते हैं कि वो इस चेक पॉइंट को क्रॉस करेंगे और क्रॉस करने के बाद जो है वो साइकिल में एंटर होंगे और अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करते रहेंगे। तो उसको ऑन्कोजीन्स जो थे जो कि कैंसर काज करते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए नेचर ने हमारी बॉडी के अंदर जो है, देखिए पहला तो सिस्टम रख दिया कि ये ऐसे सेल्स जो अनकंट्रोल सेल डिवीजन कर सकते हैं ना, तो वो इस चेक पॉइंट के थ्रू होके गुजरते हैं, ठीक है, G1S चेक पॉइंट के थ्रू। और सेकंड जो था हमारे पास थे ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो थे जिसमें TP53 आता है जो कि उनको जीन्स को कंट्रोल करते हैं, कैंसर काजिंग जीन्स को सप्रेस करके रखते हैं, वही ट्यूमर सप्रेसर जीन्स इस चेक पॉइंट को भी मॉनिटर करते हैं, देखते हैं, क्योंकि अगर ये चेक पॉइंट सही से काम ना करे
तो ऐसे जीन्स जो कि कैंसर का कर सकते हैं आगे जाके, वो इसको क्रॉस करेंगे और आगे जाके वो मल्टीपल सेल डिवीजन्स करेंगे और हमारी बॉडी जो है वो कैंसर का शिकार हो जाएगी। सो इसको जो चेक एंड बैलेंस का जो रखता है इस पर वो है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। वो इस पे क्या है कि नज़र रखता है, इसके ऊपर नज़र रखता है और इसको कंट्रोल करता है कि ये चेक पॉइंट जो है अपना काम अच्छे से करे। क्योंकि अगर वही कैंसर जो काजिंग जीन्स अगर वो कंट्रोल इसको क्या कहते हैं कि अगर वो इसको जो है क्रॉस कर जाते हैं तो अनकंट्रोल सेल डिवीजन होती रहेंगी और जो है आपकी बॉडी जो है वो कैंसर का शिकार हो जाएगी। सो आज के डिस्कशन के अंदर हमने डिस्कस की जीन एक्सप्रेशन, हमने डिस्कशन की डीएनए एप्लीकेशन, हमने डिस्कशन की सेल साइकिल की, हमने डिस्कशन की प्रोटो ऑन्कोजीन्स की, हमने डिस्कशन की ऑन्कोजीन्स की, हमने डिस्कशन की ट्यूमर सप्रेसर जीन्स की। ओके, सो द लास्ट वन जो हमने अभी तक डिस्कशन नहीं की, जो हमसे स्किप हुई, वो थी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जो है ये हमने डिस्कशन इसकी नहीं की। सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इन अ शॉर्ट वे। अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, डीएनए से मैसेंजर आरएनए का मिलना, ये तो था ट्रांसक्रिप्शन, ओके। बट यही अगर हमें दोबारा डीएनए मिल जाए हमें मैसेंजर आरएनए से, तो वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, दिस प्रोसेस इज नॉट सो कॉमन इन ह्यूमंस। ओके, दिस प्रोसेस not so common in humans। ओके, ये जो प्रोसेस है ये कॉमन है अ ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉल्ड रेट्रोवायरसेस के अंदर जो है ये कॉमन है। एंड रेट्रोवायरसेस एज यू ऑल नो अबाउट रिलेटेड टू HIV and AIDS। So here is the first discussion is about the central dogma of the molecular biology. I hope you guys will like it, and in the next discussion I will explain you the remaining part of this chapter is about the nucleic acids and DNA structure. Okay, so I hope you guys will like it, and if you guys like it, please do a big thumb up and subscribe to my channel। एंड अगर आपको फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, सो यहाँ पे जो है आपके सामने मेरी इंस्टा ID आ रही होगी, सो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सो इंशाल्लाह आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो अल्लाह हाफिज़।